So good afternoon, students. We are going to extend the topic cockroach morphology. We were discussing cockroach morphology in our previous class, and we have completed with the earthworm section. Now, to move forward with the cockroach morphology, the next is the Uh, one time more, we just go through the morphology which is given in the NCRT, the image of the cockroach, so that you revise it. So you can see now, you can see this is the cockroach morphology, which is, you can see external features of cockroach, and it is written also here. Um, The cockroaches have from phylum Arthropoda. Bright yellow, green colored can also be found in the tropical areas, and they are size ranges from 1/4 of inch to 3 inches, and they have long antennas. They have legs and flat extension of our body that wall that conceals head, and they are nocturnal, means they are active at night, and omnivore, that they can eat vegetarian, non-vegetarian food and live in moist places throughout the world, and they are very obnoxious. They do various diseases, spread various diseases. That's why cleaning is very important here. Now, morphology: the adults of the common species of cockroach, Periplaneta americana, are about 34 to 53 millimeters. So their size is they are so much long, 34 to 53 millimeter long, and the wings that extend beyond the tip of the abdomen in the males, and wings are also long, so that the whole abdomen can be covered by the wings. The tail can be covered, and the body is divided into three parts: head, thorax, and abdomen. The entire body is covered by hide, chitinous exoskeleton. So they have chitinous exoskeleton. Chitin is a sugar polysaccharide, complex polysaccharide, which is found in the chitinous exoskeleton. And then their exoskeleton, the plates, hardened exoskeleton plates, are known as sclerites. Tergites, they are called as dorsally, and the sclerites only are called sternites ventrally. तो स्क्लेरिटन के एक्सोस्केलेटन की मेम्ब्रेन्स को कहते हैं, जो इनका कवच की तरह होती हैं, बट पीछे की तरफ से उन्हें टर्जीड्स बोलते हैं, यानी ऊपर की तरफ से दिखने पर, जब कॉकरोच को ऊपर की तरफ से देखा जाएगा तो उन्हें टर्जीड बोलते हैं, और अगर उसको पलट दे कॉकरोच को और आगे की तरफ से, वेंट्रल तरफ से देखें, तो वो वेंट्रली जब देखते हैं तो वो स्टेनाइट कहलाता है. तो इसलिए डॉर्सली टर्जीड्स बोलते हैं कॉकरोच के स्केलेटन की मेम्ब्रेन को, और वेंट्रली स्टर्नीट्स बोलते हैं. दैट आर जॉइंट टू ईच अदर. सो ये सारी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से ज्वाइन कर रखी होती है, थिन और फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ज्वाइन हो रखी होती है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आपको इसमें माउथ पार्ट्स के बारे में समझाया हुआ है. तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स क्या हैं? So it is explained in this. Head is triangular in shape. कॉकरोच का जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में, एंड इट इज फॉर्म्ड पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, मतलब सबसे टॉप में आता है. तो ट्रायंगुलर होता है, एंटीरियरली होता है राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल है उसके 90 डिग्री पे हेड होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. 6 सेगमेंट फ्यूज करके उसका हेड बनाती हैं, कॉकरोच का हेड, एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन. उसका हेड, कॉकरोच अपना हेड को हर डायरेक्शन में घुमा सकता है, तो उसकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से वो घुमा पाता है. हेड कैप्सूल के अंदर पेयर ऑफ कंपाउंड डाइज होती हैं, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनास होते हैं, राइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ आईज. आईज के जस्ट फ्रंट में एंटीनास निकलते हैं, जो कि आईज जिनके अंदर सॉकेट्स होते हैं. एंटीनास के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एंटीना के पास, जो कि मॉनिटर करते रहते हैं इन्वायरमेंट को, पहचानते रहते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई हार्म तो नहीं है. Then antenna, sensory receptor monitoring the environment, and anterior end of the head bear appendages from biting and chewing type of mouth parts. आगे की तरफ
एंटीना के अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर माउथ पार्ट्स होते हैं जो काटने के लिए, चबाने के लिए उस शेप के होते हैं। तो माउथ पार्ट्स होते हैं, जिस माउथ पार्ट का नाम बोल रखा है कि लेब्रम, मतलब होता है ऊपर वाला होठ कॉकरोच का, अपर लिप। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का मतलब है जॉस, लोअर जॉस। अ पेयर ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला का अर्थ है मैक्सिला एंड मैंडिबल, एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, इसको कहा गया है मैंडिबल एंड मैक्सिला। एंड देन लेबियम जो है वो लोअर लिप है, नीचे वाला होठ है। तो ये इसके माउथ पार्ट्स है। मीडियन, फ्लेक्सिबल, ये तो चार हो गए। लेब्रम, अपर लिप, देन आएगा अपर जॉ, देन आएगा लोअर जॉ एंड लोअर लिप। अब इसके अंदर, इनके दोनों जबड़ों के अंदर, मतलब मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर, अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में एक टंग जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल लोब होता है, जिसे बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स, जो टंग की तरह काम करता है, जीभ की तरह काम करता है। लाइज विद इन द कैविटी ऑफ इनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स, और ये माउथ पार्ट्स के बीच में रहती है ये जीभ, हाइपोफेरिंक्स। तो थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। थोरैक्स, अब नेक्स्ट पार्ट, माउथ के बाद, हेड के बाद थोरैक्स रीजन आता है। थोरैक्स समझाने से पहले आप इसका डायग्राम समझ लो, डायग्राम देख लो। जिन माउथ पार्ट्स की बात हो रही है वो ये माउथ पार्ट्स हैं। जो हेड की बात हुई है और कंपाउंड और एंटीना की बात हुई है वो यही है, कंपाउंड आईज है। उसके जस्ट आगे एक एंड सॉकेट में एंटीनाज हैं। देन लेब्रम मतलब अपर लिप, एंड लेबियम मतलब लोअर लिप, उसके बीच में अपर जॉ, मैंडिबल, एंड लोअर जॉ मैक्सिला, और बीच में हाइपोफेरिंक्स। और यहाँ पर ये तो एंटीरियर व्यू दिखा दिया। देन बी पार्ट में यही सारे पार्ट्स को खोलकर दिखा दिया है आपको, ठीक है। दीज पार्ट्स आर शोन ओपन इन द बायलेटरल पोजीशन। सो किस तरीके से फ्रंट व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, वो आपको माउथ पार्ट्स के बारे में बताया। हाइपोफेरिंक्स देख रहे हो आप की टंग है, लेब्रम अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है, देन मैक्सिला लोअर जॉज है, एंड मैंडिबल अपर जॉज हैं। ग्राइंडिंग, इनके अंदर ग्राइंडिंग इंसिजन रीजन हैं जो काट कर सकते हैं चीजों को, खाने के लिए, च्यूइंग के लिए ये माउथ पार्ट्स बने हैं। तो हेड पोर्शन में ये माउथ पार्ट्स होते हैं। दीज आर द प्रेजेंट माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच। अब हम आते हैं थोरैक्स रीजन पे। हेड के बाद थोरैक्स आता है। तो थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो थोरैक्स तीन पार्ट से बना होता है। इसमें प्रोथोरैक्स बोलते हैं सबसे आगे वाले थोरैक्स रीजन को, मीजोथोरैक्स मिडिल थोरैक्स को बोलते हैं, और मेटाथोरैक्स लेटर या बाद वाले लास्ट सेगमेंट्स के थोरैक्स को बोलते हैं। हेड कनेक्टेड होता है थोरैक्स से एक छोटे से एक्सटेंशन से, जिसको नेक बोलते हैं, और नेक हेड को कनेक्ट करके रखती है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल है, बिकॉज नेक की वजह से ही हम लोग सब जगह घूम देख पाते हैं, घुमा पाते हैं अपने सर को। ये तो हम अपने आप से भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. प्रोथोरैक्स में भी एक जोड़ा टांगे होंगी, मीजोथोरैक्स में भी और मेटाथोरैक्स में भी। तो थ्री पेयर ऑफ लेग्स इन थ्री thorax region you will find. The first pair of wings arises from mesothorax and the second pair of wings arise from metathorax. दो जोड़े इनके पास पंख हैं। तो पहले मीजोथोरैक्स में एक पहला पेयर ऑफ विंग्स है और दूसरा पेयर विंग का मेटाथोरैक्स में। फोर विंग्स मेजोथोरैसिक कॉल्ड टेगमिना। जो आगे वाले विंग्स उन्हें टेगमिना बोलते हैं, जो क्या गाढ़े रंग के होते हैं, डार्क रंग के होते हैं और थोड़े से लेदरी होते हैं, मोटे होते हैं, चमड़े जैसे लगते हैं। एंड कवर द हिंड विंग्स, और ये विंग्स दूसरे वाले नीचे वाले पंखों को, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको ढक के रखते हैं। द हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेन से पतले हैं और फ्लाइट में यूज होते हैं। तो ऊपर वाले विंग्स का, क्योंकि उनमें ज्यादा मेलेनिन है, ज्यादा डार्क है, इस वजह से वो यूवी रेस से इन कॉकरोच को, नीचे वाले विंग्स को बचा के रखते हैं, डैमेज से बचा के रखते हैं। तो ये इनका रोल है। और नीचे वाले विंग्स हल्के मेम्ब्रेनस, तो फ्लाइट से होती है, उड़ता है कॉकरोच। अब एब्डोमेन की बात होती है। तीसरा जो पार्ट है बॉडी का, वो एब्डोमेन है कॉकरोच का। फर्स्ट पार्ट हेड, थोरैक्स और मिडिल पार्ट, एंड देन एब्डोमेन लास्ट पार्ट। एब्डोमेन मेल और फीमेल का 10 सेगमेंट का बना होता है कॉकरोच का एब्डोमेन। इन फीमेल 7th sternum is boat shaped and fused together with 8th and 9th sterna
to form a brood or genital pouch whose anterior part contain female gonopores, spermatical pores and collateral glands. फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम होती है, एब्डोमेन का जो 7th स्टर्नम है, यानी इसका प्लेट है या कवरिंग एक्सोस्केलेटन की प्लेट स्टर्नम उसे बोला है, तो 7th कवरिंग प्लेट जो है वो बोट शेप की होती है, सेगमेंट की बोट उसका जैसे नाव होती है उस तरह की होती है, जो 8th और 9th से भी जुड़ी रहती है, और एक ब्रूड जैसा स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, जिसके अंदर फीमेल गोनोपोर यानी फीमेल पोर होता है, रिप्रोडक्टिव पोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स भी होते हैं. मेल्स में वही जेनिटल पाउच और चेम्बर लाइज एट हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के बिल्कुल लास्ट पार्ट में मेल्स में जेनिटल पाउच होते हैं, जो बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th और 10th टर्गम, जो कि 9th और 10th टर्गा से जॉइंटेड होते हैं, वेंट्रली 9th स्टर्नम से जॉइंटेड होते हैं, क्योंकि आगे की एक्सोस्केलेटन को स्टर्नाइट बोलते हैं और पीछे को टर्गाइट बोलते हैं, इसलिए यहाँ टर्गा वर्ड लिखा हुआ है और स्टर्ना वर्ड लिखा हुआ है. इट कंसिस्ट डोर्सल एनस, और कॉकरोच में डोर्सली ये जो लास्ट सेगमेंट्स होती हैं ये एनस भी रखती हैं, यानी वहाँ एनस भी होता है. वेंट्रली मेल जेनिटल पोर होता है, गोनोकोफाइसिस होता है मेल में, आगे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे उसका जेनिटल पोर होता है, जिससे और गोनोकोफाइसिस भी होता है, जिससे कि वो स्पर्म रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में. मतलब यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है, एंड दे विल कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, and then the male will transfer the sperms into the female body, and male, for this, for transferring the sperms, male bear a pair of short thread like anal styles and anal cerci. ये दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि फीमेल को क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है और स्पर्म्स भेज सकता है. एंड इन बोथ द सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट. एनल सर्की दोनों में होते हैं, जबकि एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होते हैं. ये एक पहचानने का तरीका होता है, मॉर्फोलॉजी में ये डिफरेंस होता है कि मेल में थ्रेड जैसे एनल स्टाइल्स होते हैं, यानी मेल बहुत स्टाइलिश होते हैं, और फीमेल्स में स्टाइल्स नहीं होते, और एनल सर्की दोनों में मिलते हैं, फीमेल्स में भी मिलते हैं और मेल्स में भी मिलते हैं. एक्चुअली स्टाइलिश होने का मतलब नहीं, बस ये याद करने के लिए बोला है कि एनल स्टाइल्स आर फाउंड इन मेल्स and absent in female, and anal styles are helpful in gripping the female while transferring the sperms into the body of the female cockroach. So that is the function of anal styles. Now we will move to the next, that is the digestive system of cockroach and anatomy. Basically the gut, what is there in the digestive system of cockroach, this we will see now. So anatomy, the alimentary canal, it's shown here. The alimentary canal present in the body cavity is divided into 3 regions. Alimentary canal भी 3 regions में divided है. बॉडी कैविटी की पहला जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का यानी इंटेस्टाइन का, उसे फोरगट बोला गया है. देन मिडगट, मिडल रीजन बोला गया इंटेस्टाइन का, एंड द लास्ट पार्ट इज द हिंडगट. माउथ ओपन होता है एक छोटे से ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर. ये ट्यूब फेरिंग्स होता है थ्रोट रीजन, तो माउथ तो बस एक ओपनिंग है, वो फूड जो खाता है माउथ के थ्रू फेरिंग्स में आता है. देन लीडिंग टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज ईसोफेगस, फिर उसके बाद जस्ट ईसोफेगस फूड पाइप होता है, उसमें आ जाता है फूड. देन दिस इन टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड. एक बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि क्रॉप है, उसमें फूड आके स्टोर होने के लिए, तो जल्दी जल्दी कॉकरोच खाना खाता है और क्रॉप में स्टोर करे जाता है. द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस. क्रॉप के बाद जस्ट एक ग्रिजार्ड नाम का स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर थिक सर्कुलर काइटिनस मसल्स होते हैं जो क्यूटिकल के बने होते हैं और हाईली इतने ज्यादा कांटेदार होते हैं कि जो भी खाना कॉकरोच ने खाया होता है दांतों की तरह काम करके उसे पल्वराइज कर देते हैं, फूड पार्टिकल को ग्राइंड कर देते हैं अच्छे से. तो गिजार्ड का काम होता है टू ग्राइंड द फूड पार्टिकल्स, एंड इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, और सारा फोरगट क्यूटिकल से लाइंड होता है. एंड plate called gizzard helping grinding the food particle. Entire foregut is lined by cuticle. A ring of 6 to 8 blind tubules. आप देख रहे हो गिजार्ड के जस्ट नीचे ट्यूब्स का 6 से 8 ट्यूब्स हैं उस रीजन में, जिसे हेपेटिक सीके बोला गया है. तो फोरगट और मिडगट के बीच, जंक्शन के बीच में, दोनों के जंक्शन के बीच में यहाँ से मिडगट शुरू हो रहा है, तो उसके जस्ट टॉप पे और फोरगट जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे हेपेटिक सी के नाम के 6 to 8 9 ट्यूब्स हैं.
एंड ये ट्यूब्स गैस्ट्रिक सीके भी कहलाते हैं। एंड जो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हैं, जॉइनिंग पॉइंट पे हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, ये ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, एंजाइम्स, जो फूड को और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन, ये जूसेस निकाल के इंटेस्टाइन में भेज देते हैं और वहां पर जाके डाइजेशन होता है फूड का। At the junction of midgut and hindgut present the ring of another 100 to 150 yellow colored thin filamentous malphizian tubules. अब फिर आप देख रहे हो malphizian tubule जैसे 100 से 150 पतले पतले ट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी हैं, मिडगट और हिंडगट लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और मिडिल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के बीच के जंक्शन में भी malphizian tubules नाम के ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि आपके जो भी बॉडी के प्लाज्मा में जो भी कंसंट्रेशन में इसका रोल एक्सक्रीशन में है। तो जो भी सॉल्ट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे आयंस हैं जो ज्यादा हैं ब्लड प्लाज्मा में, उनको एब्जॉर्ब करके, नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। तो रिमूव करने के लिए वेस्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं malphizian tubules प्लाज्मा से, और ब्लड से जो चारों तरफ फैल रखा है उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेस्ट पार्टिकल्स को और गट में डाल देते हैं तो फॉर रिमूवल। सो हिमोलिम्फ इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कॉकरोचेस का। हिमोलिम्फ में से malphizian tubules will absorb the bad material or nitrogenous waste and will put it into the colon और लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, हिंडगट। तो हिंडगट 3 में बटा हुआ, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इलियम उसका पहला पार्ट है एंड देन कोलन आता है एंड देन रेक्टम। सो रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस। रेक्टम पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है कॉकरोच। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज अभी हमने इस वीडियो में 2 चीजें पढ़ी। एक तो हमने मॉर्फोलॉजी में हेड पोर्शन, thorax portion और abdomen portion पढ़ा कॉकरोच का। With the diagrams we are understanding what are the mouth parts, and then mouth parts are present in head. Then we studied about the thorax, that it is divided into prothorax, mesothorax and metathorax, जिसमें meso और meta region में एक pair wings tegmina are there in mesothorax and tegmen are present in the metathorax, and prothorax and each thoracic segment has one pair of legs, ये भी हमने देखा। देन हमने एब्डोमेन की बात करी, वहां देखा मेल और फीमेल के एब्डोमेन में क्या अंतर है, फीमेल जेनिटल पाउच क्या है और मेल जेनिटल पाउच क्या है, और देखा लास्ट सेगमेंट्स में मेल के एब्डोमेन सेगमेंट्स में लास्ट में anal styles होते हैं that are absent in female, and anal cerci both are present in the both sexes. then हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसमें हमने गट को देखा स्टार्टिंग से माउथ, देन फेरिंग्स एंड देन क्रॉप, माउथ फेरिंग्स से फूड ईसोफेगस एंड क्रॉप, देन गिजार्ड। देन आपने देखा हेपेटिक सीके का रोल डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने में at the junction of foregut and midgut, and that then midgut is there, mesenteron it is also known as. Then malphizian tubules you will find at the junction of the midgut and the hindgut, and then that is having excretory function, osmoregulatory function, and then at the last you saw that it's the last part of the intestine is divided into ileum, colon and rectum, and rectum the last part is anus, which is releasing the waste. So this is the topic which is clear, I hope. So now this is over. In the next class we will study about the circulatory system, or that is the open type of circulatory system of the cockroach, or blood vascular system. So today's class is still here. So bye, take care.